رات گئے ججوں کا ایک نیا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب قاضی فائز عیسیٰ اور شہباز شریف کی ملاقات کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے 6 خط لکھنے والے ججوں کو ٹرک کے نیچے دے دیا ہے، اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے تمام تر ججز کا ایک اعلامیہ، ایک اور خط، صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ قاضی صاحب کا اس وقت ایک بہت ہی کڑا امتحان ہے، لیکن بہت سے سوالات جن کے جوابات تو کم ہیں، لیکن اس وقت سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت طاقتوروں کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر چکے ہیں۔ یہ چھیڑ خانی شہباز شریف سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے طاقتور حلقے، لیکن پہلا بڑا سرپرائز شہباز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے دیا، اور اب ایک اور سرپرائز دے کر طاقتوروں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم دا باس ناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں، آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے۔ ایک طرف تو 6 ججز کو کارنر کر دیا گیا ہے، اور جو میں نے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا کہ یوں لگ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے جو قاضی گروپ کے ججز ہیں، سارے جسٹس صاحبان جو میجورٹی میں ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ ججز کے خط والے معاملے پر ایک پیج پر ہے۔ اب یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے جس میں جسٹس باقر نجفی، جسٹس سردار طارق مسعود اور ایک اور جج صاحب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایک سنگل پاورڈ کمیشن ہوگا، ایک سنگل ممبر کمیشن ہوگا، یعنی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت اس کمیشن کے اندر ناپید ہوگی۔ اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے، یہ سوال بھی ہے کہ حاضر سروس ججوں کو سمن کرے گا ایک ریٹائرڈ جج۔ شیر افضل مربت نے کل ایک ٹی وی شو کے اندر ایک لطیفہ سنایا، یا پھر انہوں نے حقیقت بیان کی کہ ریٹائرڈ جج چاہے کمیشن کا سربراہ ہو یا گھر میں، اسے لوگ اور رشتہ دار جو ہیں وہ اپنے پوتوں اور نواسوں کے ختنوں پر بھی نہ بلائیں، اور ریٹائرڈ جج کی حیثیت ریٹائرمنٹ کے بعد ایسی ہو جاتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ سارے کے سارے بہت کچھ کلیئر کر چکے ہیں، بہت کچھ واضح کر چکے ہیں، حاضر سروس ججز ہیں، ایک پوری کی پوری ہائی کورٹ ہے جو کہ اس وقت ساری کہانی بیان کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 جج ہیں جو یہ سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب کے اندر سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے اس وقت کیا تحقیقات کریں گے، کون تحقیقات کرے گا، اور یوں لگ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ان ججز کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن ایک بڑی عجیب سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی میں اس وقت اب کارکن بھی پھٹ پڑا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اب کل لطیف کھوسہ صاحب نے کیا کام کیا، خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل جو ہے اس میں ضمانت کی درخواست تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب کو پتا چلا کہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے خان صاحب سے، وہ ضمانت چھوڑ کے خان صاحب سے ملنے چلے گئے۔ خان صاحب تک ایکسس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی وکلا کو ہی حاصل ہے، اور ساری کہانی جو ہے وہ وکیل ہی بیان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو کنسرنز بھی ہیں کہ اپنی اپنی سیاست کے چکر میں ہے خان صاحب کے کیسز جو ہیں ان پر وہ توجہ نہیں دی جا رہی جو توجہ دی جانی چاہیے تھی۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، منحرف سیاست دانوں کی کیا پاکستان تحریک انصاف میں واپسی ہونے جا رہی ہے۔ خان صاحب کی پوزیشن اس پر بڑی واضح ہے۔ خان صاحب نے تو ان لوگوں کو پارٹی میں جگہ نہیں دوبارہ دی جو لوگ عمران خان صاحب کی پارٹی کو اس لیے چھوڑ کر چلے گئے کہ مجبوریاں تھیں، ان کے اوپر پریشر ڈالا، یعنی کچھ تو ایسی مجبوریاں بھی تھیں کہ جو سمجھ آتی ہیں۔ اب خان صاحب نے انہیں ٹکٹس نہیں دیں، جب ٹکٹس کا معاملہ ختم ہوا خان صاحب نے کہا اب مفاد ختم ہوا ہے نا، اب جس نے واپس آنا ہے آئے، 100 بسم اللہ۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد 2022 کے وقت عمران خان کو چھوڑنے والے محمد افضل خان ڈھانڈلا ہیں، یہ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بھکر سے دوبارہ پنجاب اسمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، اور انہوں نے شہباز شریف کی اس حکومت سے پورے فائدے بھی حاصل کیے۔ اور ظاہری بات ہے، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ایسے لوگ واپس آ سکتے ہیں تو جنہیں بلیک میلنگ کے ذریعے پارٹی چھڑوائی گئی انہیں بھی واپس لیا جائے۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ
जराए के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी इजलास में फैसलाबाद से अफजल ढांडला को टिकट देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया और एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि अगर ऐसे लोगों को टिकटें देनी है तो फिर कारकुन जेल क्यों काट रहे हैं, इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं, नजरिए पर खड़ा होना जरूरी नहीं। और हमाद अजहर साहब जो हैं उन्होंने इस सब के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि अफजल ढांडला को टिकट बानी चेयरमैन की हिदायत पर दिया गया, यहां हमारा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था, अफजल ढांडला आजाद हैसियत में दूसरे नंबर पर। अफजल ढांडला ने बानी चेयरमैन से अपनी माजी की गलती पर माजरत की दरख्वास्त की थी जिसको इमरान खान साहब ने कबूल किया था। लेकिन इसमें एक चीज समझ नहीं आ रही और यह बात तस्लीम करना मुश्किल है कि इमरान खान जानते बूझते हुए सिंध हाउस वाले किसी बंदे को टिकट दें। सिंध हाउस में जो जमीरों की मंडी लगी थी उसमें बैठने वाले किसी बंदे को टिकट देने का इमरान खान साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि हमाद अजहर साहब क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी तो उन्होंने एक मानी खेज जुमला ट्वीट किया जवाब देते हुए एक यूजर को। कहते हैं कि बात यह है कि अगर खान साहब का कोई हुक्म मिलता है तो उसे रद्द करने की मैं जिसारत नहीं रखता, चाहे मेरी अपनी जो भी राय हो, और जिनका खान साहब से राब्ता है वही फीडबैक या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, मैं नहीं। यानी कि खान साहब जो हैं उन तक सिर्फ वही बातें रखी जा सकती हैं जो लोग खान साहब तक एक्सेस रखते हैं। मेरा खान साहब तक एक्सेस नहीं है तो मुझे तो सिर्फ ये बताया गया कि खान साहब का हुक्म है और उसे रद्द करने की मैं जिसारत नहीं कर सकता। अब खान साहब को क्या कहानी सुनाई गई है, कौन से वो लोग हैं, मेरे पास एक खबर पहुंची है कि एक बंदा है और ये बड़ा सीनियर बंदा है जिसने इस शख्स का केस लड़ा है और इसके लिए ग्राउंड सेट किया। इस वक्त सारे मफाद की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई चीज़ इग्नोर हो रही है तो वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक और मैंडेट चोरी के लिए तहरीक और अब जजेस का मामला ये इग्नोर हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि कल रात भी कोर कमेटी का इजलास हुआ। शहबाज गिल साहब ने इस इजलास से पहले ही कहा कि अब से कुछ देर में मैं कुछ गुजारिशात कोर कमेटी के सामने रखूंगा कि जी हमें मुतहर्रिक होना है, ये सारे मामलात करने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज की कोर कमेटी में मेरे और दूसरे दोस्तों की गुजारिशात पर खुलकर बात हुई, सख्त और नरम दोनों तरह की बातें हुई। मैंने भी और दूसरे दोस्तों ने भी खुलकर इजहार किया। कोर कमेटी ने फौरी तौर पर 8 रुकनी सब कमेटी तश्कील दे दी जिनके जिम्मे लगा है कि 6 जजेस के खत के बाद की सूरत हाल पर तफसीली प्लान मुरतब करें ताकि मौसर एहतजाज हो सके। सब कमेटी में दर्ज झेल मेंबर हैं सलमान अकरम राजा, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, डॉक्टर शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद, फिरदौस शमीम नकवी, जुनेद अकबर, शादाब जाफरी, जमाल खान साहब। सब कमेटी का फौरी इजलास हुआ जिसमें हमने एक तफसीली प्लान बनाकर वापस कोर कमेटी को मुहैया कर दिया है। जो गुजारिशात मैंने कोर कमेटी के सामने रखी थी वो तकरीबन तमाम गुजारिशात सब कमेटी ने प्लान का हिस्सा बनाई और दूसरे दोस्तों की तफसीली इनपुट भी शामिल करके एक तफसीली प्लान मुरतब कर दिया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस प्लान पर भरपूर तरीके से अमल होगा। अब अमल होता भी है कि नहीं ये तो अब शहबाज गिल साहब भी बेचारे नहीं बता सकते, वो अमेरिका में बैठे हैं। कोर कमेटी के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं और जिस तरह से एक सख्त किस्म का बयानिया अपनाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करने पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इसके बरक्स आप किसी एक जज की मुबैना ऑडियो लीक देख लें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज और प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया स्टेटमेंट सब कुछ हमने देखा। लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब की जमात की तरफ से जो लोग पीछे बैठे हैं, खान मैदान में होता तो फिर तो गल ही और सी, फिर तो गल करने की लोड़ ही नहीं सी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल बन चुकी है और जो हमारे मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है। परसों हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिंडी से जो लोग रिहा हुए उन्हें डिप्टी कमिश्नर साहब पिंडी जो हैं जिनके वालिद साहब नून लीग की टिकट पर फॉर्म 47 के जरिए मेंबर असम्बली बने, उन्होंने एमपीओ के जरिए उन्हें अरेस्ट करवा दिया। अब सनम जावेद जो है और आलिया हमजा जो है उनके हवाले से भी इसी तरह की डिटेल्स आ रही हैं। आलिया हमजा की तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी है, लेकिन पहले आलिया हमजा को मियाँ वाली की पुलिस गिरफ्तार करने आई और फिर रात गए तक जो मेरे पास आखिरी डेवलपमेंट पहुंची उसमें सरगोदा की जो पुलिस है वो उनसे तफ्तीश कर रही थी। और आलिया हमजा जो है वो लाहौर, सरगोदा, मियाँ वाली, फैसलाबाद, शोरकोट और दीगर शहरों में 9 मई वाले दिन बैक वक्त मौजूद थी। इससे भी ज़्यादा जो मुज़हिका खेज बात है और इस तरह के काम मैं समझता हूँ कि उस पूरे के पूरे इवेंट पर क्वेश्चंस रेज करते हैं। सनम जावेद को एक और मुकदमे में जब ये अरेस्ट करते हैं तो इस वक्त अगर सारे मुकदमात जो सनम जावेद पर बनाए गए हैं आप और मैं उनका जायजा लें तो इतनी तेज़ी से तो रोशनी की रफ्तार सफ़र नहीं करती जितनी रफ्तार सनम जावेद की बताई जा रही है। केनाल रोड लाहौर से 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सनम जावेद ने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई, फिर वहां से राहत बेकरी पहुंची, वहां पर आग लगाई, वहां से 6 किलोमीटर थाना
शादमान को आग लगाई, 4 किलोमीटर जमान पार्क में जलाओ घिराव किया, फिर 15 किलोमीटर का सफर तय किया और नून लीग के दफ्तर में जनरेटर को आग लगाई, फिर 20 किलोमीटर का फासला तय किया और शादमान थाने की हुदूद में आग लगाई, फिर सनम जावेद लकड़ी उठाए पलक झपकते ही 333 किलोमीटर का सफर तय करके मियां वाली पहुंची, वहां थाना कमर मुशानी की हुदूद में सनम जावेद ने शरंगेजी की। यानी कि कुछ तो पीछे बात रहने दें, मुज़िक्का खेज काम हो रहे हैं, मुज़िक्का खेज केसेस हैं, और इनसे फिर देखिए, मैं पहले भी ये बात करता हूं कि शोहदा की यादगारों की जो तौहीन है उसमें सिर्फ एक इदारा जो है वो स्टेक होल्डर नहीं है। मेरे जज्बात मजरू हुए हैं, पूरे पाकिस्तानियों के तमाम तर हम लोगों के जज्बात मजरू हुए हैं, और ये एक अनफॉर्चुनेट सानेहा था। इस सानेहे में मुलव्विस लोगों को जब हकीकी मानों में सही सजाएं मिलेंगी, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट को हम छोड़ेंगे, तब जाकर इस सानेहे की क्रेडिबिलिटी और इसके अंदर सजाओं की क्रेडिबिलिटी पर भी जो सवालात हैं वो उठने कम हो जाएंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो रखनी है। इस वक्त नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास बेसिकली 30 मार्च बरोज़ हफ्ता दिन 12 बजे बुलाया गया है। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मामला जो है, उनके ख़त का मामला ज़ेर गौर आएगा, और ये इजलास अब सैटरडे को इत्तलात के मुताबिक बुलाया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो कमीशन बना है उस कमीशन में एक रिटायर्ड जज क्यों, हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट का जज इस कमीशन की सरबराही क्यों नहीं कर सकता। इसमें यही कहा जा रहा है, और इवन बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, क्या इस सब में क्या ये एक और ब्रॉडशीट कमीशन होगा, क्या ये एक और मिसिंग पर्सन कमीशन होगा, क्या ये एक और सलीम शहजाद कमीशन होगा। ये वतीउल्लाह जान ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि जज कोई और इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि जाहिर बात है वो भी उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहा है जो इन 6 जजेस के साथ होने हैं। अब वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत होने वाले फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। एग्जेक्टिव की जानिब से जजेस के अदालती कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत होने वाले फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास के एलामिये के मुताबिक 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मिला। मामले की संगीनी पर उसी दिन चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद के 6 जजेस की मीटिंग बुलाई। हर जज के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास दोबारा बुलाया। इजलास में जजेस को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफ किया। फुल कोर्ट मीटिंग में 6 जजेस के खत में उठाए गए इशूज़ पर गौर हुआ। एलामिये में कहा गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में वाज़े किया गया कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। एग्जेक्टिव की जानिब से जजेस के अदालती कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मामले की छानबीन करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कमीशन की तश्कील के मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस और मुलाकात में शामिल सीनियर तरीन जज का कहना था कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी सतून है जो कानून की हुक्मरानी बरकरार रखता है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि वो आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद मुनासिब इक़दामात करेंगे। वज़ीर आज़म ने फैज़ाबाद धरना केस के पैराग्राफ 53 से मुतल्लिक कानून साजी शुरू करने की भी यकीन दहानी कराई। और इस सब के अंदर अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मौक़िफ़ भी सामने आया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी मोहसिन नकवी साहब को एक सरप्राइज़ दिया है। उस पर आने से पहले PTI का मौक़िफ़ सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के क़याम और इसके जरिए तहकीकात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्की अदलिया और कानूनी मफाद से जुड़े हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर इंतहाई तशवीश का इजहार हुआ। इसके अलावा मामले को अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में इस पर कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है और मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के हाजिर सर्विस जजेस के संजीदा तरीन मरासले की एक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात से एक भोंडा मजाक है। कोर कमेटी एलामी में कहा गया कि अपने खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अदलिया के वजूद को लाहक बुनियादी चैलेंज को बेनकाब किया और अवामी मैंडेट पर डाके के बलबूते पर वजूद में आने वाली हुकूमत हर लिहाज से मुल्क में जारी लाकानूनियत और गैर आइनी मुदाखलत की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। अब इस सब
सब के अंदर कहा यह गया है कि एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस तलब की जाए और हर सतह के जजेस को इस मौजू पर हकाइक कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए और इस सब के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठे और पूरी की पूरी कार्रवाई पूरी पाकिस्तानी कौम देखे, तब जाकर लोगों की तसल्ली होगी। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा होने वाला नहीं है। अब एक दिलचस्प काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब छेड़खानी कर ही रहे हैं थोड़ी बहुत, और जाहिर बात है कौन से वजीर आजम को यह कबूल होता है कि उसके नीचे बैठा वजीर दाखिला जो है वो वजीर आजम के बजाय अपनी मर्जी करता रहे। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपको पता है सेक्रेटरी दाखिला लगाने वाले मामले पर भी शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी अनबन हुई। फिर जो चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर उस मामले पर भी अनबन हुई, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी शिकायत लगी, कहीं पर कॉल की मोहसिन नकवी साहब ने और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को डांटा और शहबाज शरीफ साहब राह रास्त पर आ गए। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को भी, जो कमेटीज होती हैं जिनमें नॉर्मली वजीर खजाना होता है, उनसे महरूम किया। अब विफाकी हुकूमत ने काबीना की ईसीएल कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। ईसीएल कमेटी की सरबराही किसी विफाकी वजीर को ना देने का फैसला किया गया है। वजीर आजम काबीना की ईसीएल कमेटी की सरबराही खुद करेंगे, जबकि काबीना कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट वजारत दाखिला देगी और वजीर दाखिला को ईसीएल की इस कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। 4 जो रुकनी ईसीएल कमेटी है उसकी तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इधर उधर के जो वजीर हैं उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को शामिल नहीं किया। अब मोहसिन नकवी साहब इस मामले की क्या फिर शिकायत लगाएंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब जैसे मोहम्मद औरंगजेब साहब को कमेटीज वापस करनी पड़ी उस तरह से कमेटीज वापस करेंगे, या फिर इस कैबिनेट के अंदर ताकतवरों के 2 पावरफुल वज़रा जो हैं उनके साथ शुरू में ही इख्तलाफात सामने आ चुके हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि यही कंपनी चलेगी या ये कंपनी नहीं चलेगी? इस हवाले से भी क्वेश्चंस हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।